Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. Assalamu alaikum and very warm welcome everybody. Sad Sadiq here on behalf of Pak Passion. My guest today, I'm delighted to announce, will be a regular guest on Pak Passion. We've launched his blog on Pak Passion just the last couple of days. He's a former Pakistani Test cricketer. He's worked as an ECB scout. He's worked at Lancashire County Cricket Club. He's also worked in the PSL for Lahore Qalandars, and he's currently the Germany head coach. Delighted to welcome back Atiq Zaman. Atiq bhai, hope you're well. Assalamu alaikum, Zahid bhai. I'm good. How about you? Yeah, things could be better, Atiq bhai. I think we know why they could be better. Brother, first of all, I want to talk about Babar Azam and Mohammad Rizwan. They keep saying they have to bat this way because there isn't much support in the batting, and the batting collapses and crumbles, so they have to bat it virtually a runner ball. What do you think about this, Atiq bhai? Are they right, or is there an issue with the other batters? I completely disagree with it. The problem is, Sajid, if you grow your kids up and by spoon feeding, and if you keep giving them things before they ask for it, they're always going to depend on you. And this is how our Pakistan batting look like. And Babar and Rizwan, okay, they've done a job, but they won the games for Pakistan, but they haven't won the tournament. These kind of batting will win you the games, but will never win you the tournaments. Let me clear that. And this has been evidence for last few years. They've been playing for years and years and years. And even if this partnership cannot win you the game or cannot set the foundation for somebody who can come and do it, you cannot blame anyone else apart of yourself. So मुझे अफसोस होता है इन बातों से कि अपने पर्सनल एजेंडास में लोग बात कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने परफॉर्म किया वो होता है, मगर आपने दूसरों को परफॉर्म करने का मौका नहीं दिया ना, आपने दूसरों को डेवलप नहीं किया। आपने क्या कहते हैं, साइम अयूब को हल्की टीमों के खिलाफ ओपन नहीं कराई, आपने उनको अपनी कंडीशंस में ओपन नहीं कराई कि 1 या 2 स्कोर कर लेता साइम अयूब, बड़ा स्कोर, तो उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होता और वो हो सकता है कि ना वर्ल्ड कप में उसकी परफॉर्मेंस का लेवल डिफरेंट होता है। ये देखें शुरू से चले जा रहा है, जब मिसबाह और यूनुस थे तब से आपने देखा होगा कि चौथे पांचवें नंबर इन्होंने लिया हुआ था और चौथे पांचवें नंबर का बैट्समैन इन्होंने तैयार नहीं किया अपने होते में, और जब तक ये लोग रिटायर नहीं हुए इन्होंने किसी और बैट्समैन को अपने नंबर पे खेलने नहीं दिया। उसके बाद अचानक इतना बड़ा गैप आ गया, जब मिसबाह यूनुस दोनों रिटायर हुए तो गैप आ गया। then you've got nobody who can fill the gap because nobody's got an experience. Pakistan cricket has got the same issue now. Babar and Rizwan just took the position. They're not natural opener player, right? How can you, when Sharjeel and Fakhar was there in the team, they were batting number 3 and number 4. This is really unbelievable stuff, and it can only happen in Pakistan. और अपने एजेंडा के लिए इन्होंने सारी चीजों को, सारे बैलेंस को, पाकिस्तान के बैलेंस को तबाह कर दिया है। और अब कह रहे हैं कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनता हूं तो उसमें जब अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश हो रही है, कह रहे कि एक बंदे पे ब्लेम नहीं डालना चाहिए, पूरी टीम ने, हम हारे हैं साथ। यार कैसे पूरी टीम हारी है, आप मुझे बताओ। हाउ होल टीम परफॉर्म बैडली? उसमें भी पाकिस्तान में इंडिविजुअली प्लेयर हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है वर्ल्ड कप में, मगर उनके अराउंड जो प्लेयर है वो, मतलब उनके अंदर प्लेयर ही नहीं है ना, उनके अंदर प्लेयर ही नहीं है कि वो मिडिल ऑर्डर पे जाके करें। आप इफ्तिखार अहमद को टीम में लेके गए हो, क्या इफ्तिखार अहमद 2 या 3 ओवर का बैट्समैन है सिर्फ? डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया, अगर आप इफ्तिखार को परफॉर्मेंस बेस पे लेके गए हो तो प्रॉपर बैट्समैन खेल रहा है। हाउ कैन शादाब बैटिंग बिफोर इफ्तिखार अहमद? तो पाकिस्तान का जो बैटिंग ऑर्डर है ना, वो इज बिकम अ जोक। किसी भी टीम को आप मुझे बताओ कि बाबर आजम की हम तारीफ करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा प्लेयर है, उसने बहुत परफॉर्मेंस किया है। अगर बाबर आजम को मौका मिले कि वो किसी और टीम के लिए खेले, तो क्या बाबर आजम इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका या वेस्ट इंडीज की टीम में जगह बना पाएगा? करंट जिस तरह की वो बैटिंग करता है इस वक्त, एज एन ओपनर जगह बना पाएगा? तो ये बहुत ही अहम सवाल है और उसका जवाब हम सबको पता है। और अभी माइकल वॉन का इंटरव्यू पढ़ा तो उसने बहुत अच्छी चीज बोली कि करंट पाकिस्तान टीम में सिवाय शाहीन अफरीदी के मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं है जो दूसरी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका या किसी बड़ी टीम के अंदर जगह बना सके। तो पाकिस्तान टीम में इंडिविजुअल रखे हुए, एवरेज इंडिविजुअल रखे हुए, तो उसमें फिर पाकिस्तान का यही होना जी। What can I say? As a head coach yourself, put yourself in Gary Kirsten's shoes.
नया कोच आया, बिग रेपुटेशन, आईपीएल, इंडिया एटसेट्रा। वो देख रहा होगा कि किधर मैं आके फंस गया हूँ ये टीम के साथ। ही मस्ट बी वंडरिंग कि हाउ एम आई गोइंग टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस टीम। देखिए, नो डाउट गैरी कर्स्टन की रेपुटेशन है, जेसन गिलेस्पी और जितने भी फॉरेन कोच आए ना, सबकी रेपुटेशन थी। कुछ एवरेज कोच भी आप लेकर आए, मगर कुछ अच्छे कोच थे। मगर पाकिस्तान के सिस्टम में आके जब एक बंदा एक साल रहता है ना, तो उसको पता चल जाता है कि मैं भी पाकिस्तान के सिस्टम में रहा हूँ, एज अ प्लेयर और एज अ कोच। मुझे, जब मैं एज अ प्लेयर टीम के साथ था, यकीन करें मेरा दिल करता था कि मुझे टीम से ड्रॉप कर दिया जाए और मैं पाकिस्तान ए के साथ खेलता रहूँ, सिवाय पाकिस्तान मेन टीम को छोड़ के पाकिस्तान ए के साथ खेलता रहो। मेंटली टॉर्चर होता है वहां पे। और जूनियर्स का ऐसी की तैसी होती है, नया बंदा आता है सिस्टम में, अगर वो अच्छा काम करने वाला होता है तो उसके साथ गेम खेले जाते हैं, उसको इतना पुट ऑफ कर दिया जाता है कि वो फिर देन गॉट नो चॉइस टू रिजाइन। और मेरे साथ भी ऐसी हुआ कि हम गए, हम जाके चीजें सही करने की कोशिश की है, मगर आप एक हद तक सारी चीजें कर सकते हो, उसके बाद फिर आपसे वो चीजें नहीं होती। लोग आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। अब गैरी कर्स्टन के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। वो स्ट्रिक होगा तो देखिएगा कि उसको कोचिंग से हटा दिया जाएगा। पाकिस्तान में प्लेयर पावर जो है ना, वो 90s से चली आ रही है कि प्लेयरों ने कंट्रोल किया हुआ है सिस्टम को। प्लेयर ही चाहते हैं तो कोच आता है, प्लेयर की मर्जी से कोच आता है, प्लेयर की मर्जी से कोच चला भी जाता है। और अभी भी मुझे सरप्राइज नहीं होगा कि गैरी कर्स्टन को ये लोग फारिग कर दे, कि नहीं जी, बहाना दे दे कि नहीं जी वो हमारे कल्चर में नहीं ठहर सकता। ये वो देखे, आप नया कोच ला रहे हैं, हेड कोच को अगर वो पाकिस्तान में नहीं रहता तो लाने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, उसको पाकिस्तान में रहना पड़ेगा, उसको पाकिस्तान में डेवलप करना पड़ेगा प्लेयरों को। डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके स्काउटिंग भी करनी पड़ेगी, लड़कों को देखना पड़ेगा, अपने साथ कोचिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एक कोचेस को डेवलप करना पड़ेगा। तो अगर आप ये चीजें नहीं करेंगे तो फिर ऐसे हेड कोचों को इतनी सैलरी देने का कोई फायदा नहीं। ये पार्ट टाइम हेड कोचेस हैं, कोई फायदा नहीं। हमारी क्रिकेट इंप्रूव नहीं होगी। आप बस एक बड़े टूर्नामेंट से पहले आप ले आते हो, पिछले साल भी वर्ल्ड कप में हुआ, हेडन को ले आए, और वो फास्ट बॉलर शॉन थे, कौन थे, उनको ले आए। उसके बाद आके आपने क्या क्या मिला? आपको कुछ भी नहीं मिला उससे। आप बस छोटे छोटे उसमें आपने टूर्नामेंट में बुलाते रहे, लोगों को पैसे जाया करते रहे और पाकिस्तान का पैसा बर्बाद करते रहे। आप अपने कोचेस को डेवलप करें ना। आप जब आपने जब मिसबा को इतनी दी थी, तो आप मिसबा को पहले क्वालिफाइड बनाते ना। आप उनको कहते हैं कि ठीक है, लेवल 3 करो, लेवल 4 करो। यूसुफ भाई हैं, जितने भी कोचेस हैं, हमारे कोचेस डेवलप हो सकते हैं, मगर हमारे कोचेस की डेवलप होने के लिए उनके पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। और अपॉर्चुनिटीज, जब जो कोचेस हमारे डेवलप होते हैं तो उनको फिर पीसीबी में काम करने नहीं दिया जाता, वो पीसीबी में लिफ्ट नहीं कराई जाती। तो ऐसे बहुत भी कोचेस हैं जो क्वालिफाइड हैं, ओवरसीज भी हैं और जो लोकल भी रह रहे हैं, मगर उनको वो कहाँ है, उनका कोई नामो निशान नहीं है। तो पीसीबी फिर यही करता है कि पैसे होते हैं उनके पास, वो पैसे जाया करता है। फिर उसके बाद रोना होता है कि भाई नहीं जी, इस कोच से नहीं चल सका, इस कोच ने टाइम नहीं दिया। वही है ना, हमारा वो चेस का गेम चल रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। जब से मैं खेला उस वक्त से मैं ये देख रहा हूँ, अभी भी देख रहा हूँ। तो हमारा सिस्टम उस वक्त सही होगा कि जब एक सिस्टम को आप बना के उस पर हर बंदा काम करेगा, ऑनेस्टी के साथ काम करेगा, और एक ही सिस्टम बना के आप बोलेंगे यही सिस्टम, भले ये कोच हो या दूसरा कोच हो, ये सिस्टम रहेगा, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। अतीक भाई, इमाद वसीम ने कहा और शहीन शाह अफरीदी ने भी आज कहा कि the approach needs to change, the way Pakistan plays T20 cricket needs to change. ये चेंज आ सकता है या नहीं? अभी देखे ना, अब वो कह रहे, प्लेयर कह रहे हैं चेंज, और बाबर और रिजवान कहना है कि हमें चेंज नहीं चाहिए, हम इसी तरह करें। तो आधी टीम कह रही है चेंज, जो लोगों को पता है। देखिए, जो क्रिकेट नहीं भी खेलते ना साहिब, पे उनको पता है कि आप पाकिस्तान चीज में क्या गेम चल रहा है, कि किस तरह की लॉबिंग चल रही है, लेकिन किस तरह अतीक की भाई, ग्रुपिंग ऐसा चल लग रही रहा है। है, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ऐसा लग रहा है इट्स लाइक टू टीम्स विद इन वन टीम। हाँ, मे बी 3 टीम्स कि एक मैनेजर का भी ग्रुप है, सुना है कि उसका भी अपना ग्रुप है। तो आपने इतना ड्रामा किया हुआ है यार। आप देखिए, हमारे जमाने में एक कोच होता था, साथ में मैनेजर होता था, बस टीम चलती थी। आपने पूरी टीम खड़ी कर दी है। अब जाके 17 लोग हैं ना आपके ऑफिशियल में, 17 प्लेयर हैं। आपने सुना है कि 60 कमरे बुक कराए हुए थे हॉलीडे इनके वहां पे। यार ये सच जोक है यार, कि आप वहाँ क्रिकेट खेलने गए या आप वहाँ पे ना हॉलीडे करने गए हैं। आपने फैमिलियों को क्यों अलाउ करते हैं आप बड़े इवेंट में? ठीक है, छोटी सीरीज में आप समझ में आता है कि बेगम जान नहीं छोड़ती। अगर आपने उनकी वही बात हो गई ना कि आपने एक आदत बना दी है कि बेगमों को साथ लेके घूमने की आदत है, तो लोग वही करते हैं। शाम में जाते हैं तो उनका क्रिकेट से फोकस हट जाता है, फैमिली पे, बच्चों पे, बीवी पे फोकस रहता है। रात में फिर है ना, वही बंदों को कुछ पता नहीं होता कि है ना, हट के टेक अवे इसमें खाना खा रहे होते हैं, और वहां पे उनकी मूवियां चल रही होती हैं। तो एक सिस्टम पाकिस्तान का ऐसा क्रिएट कर दिया है, कल्चर ऐसा क्रिएट कर दिया, किसी को कुछ नहीं पता कि डिसिप्लिन क्या है। कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। आप इतना बड़ा इवेंट खेलने में जा रहे हो, आपका फोकस किधर है? आप सिर्फ क्रिकेट के सोचो यार। 2 हफ्ते के लिए आप क्या क्रिकेट को
बाकी चीजों को हटा के क्रिकेट पे फोकस नहीं कर सकते? आप करोड़ों रुपया ले रहे हो साल के लिए यार, किस लिए इतना पैसा ले रहे हो? क्या आपका फोकस सिर्फ है ना ग्राउंड के अंदर है, तो उसके बाद की आपकी लाइफ स्टाइल और दूसरी चीजें जो आपके एनालिसिस और ये सारी चीजें होती हैं, तो आप तो स्विच ऑफ हो जाते हो। अगर मैं उनका बयान है कि भाई क्या लड़का सर दीवारों पे टक्कर है, नहीं यार, हम नहीं कह रहे दीवारों पे टक्कर है मारे, जाए एनालिस्ट के पास जाके उसके साथ काम करे, जाए बैटिंग कोच के साथ जाके और बॉलिंग कोच के साथ जाके एक्स्ट्रा सेशन करे और बोले कि यार मुझे इम्प्रूव करना है, मेरा ये प्रॉब्लम था, मैं इम्प्रूव करूँ। ऐसी चीजें नजर ही नहीं आ रही। पाकिस्तान के वार्म अप होते हैं जो, आपने कहा इमाद वसीम का फिट हो गया है, तो कौन सा टेस्ट लिया आपने फिटनेस का? आप जरा लोगों को बताएं जाके कि आपने 2 किलोमीटर का टेस्ट लिया, देखा कि माँ भाग सकता है नहीं भाग सकता? वहां से तो भागा ही नहीं जा रहा था इंडिया वाले मैच में। तो मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि यार यहाँ पे कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं है, बस चली जा रही है चीजें, चली जा रही है। आपने इतने लोग बाहर बैठा दिए, सबके अपने अपने विजन है, कोई भी एक पेज पे नजर नहीं आता। अतीक भाई, बाबर आजम के आज he got a lot of questions in the press conference about his future. आपका क्या ख्याल है कि should he continue as Pakistan's T20 captain? देखें, अगर बाबर आजम के अंदर थोड़ी सी भी वो होती ना, एक होती ना एम्पथी, और या एक एक लीडरशिप स्किल होती, उसको कैप्टनसी एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए थी जब शाहीन अफरीदी को एक सीरीज के बाद हटाया। तो ये किस तरह का टीम मैन है और मेट है जो कैप्टनसी के लिए हविस के अंदर लाके उसने कहा कि ठीक है, मुझे एज लॉन्ग मुझे कैप्टनसी मिल रही है, दूसरे बाहर में चले जाए। उस तो आपने सब में बड़ी ज्यादती ये करी कि ना, शाहीन अफरीदी को 1 महीने के बाद आपने कप्तानी से हटाया। आपको कम्युनिकेशन करनी चाहिए थी अफरीदी के साथ। लुक अफरीदी, व्हाट डू यू थिंक, अगर मुझे कप्तान बनाते हो और दोबारा से बनाने की ऑफर हो रही है, अगर मैं कप्तानी लूंगा तो तुम्हारा फ्रेंड तो नहीं हो गया? अगर हो गए तो बता दो, अभी से बात कर लेते हैं, वरना मैं कप्तानी नहीं लेता तो भी कप्तानी। देखिए, एक टीम इस तरह चलती है कि आप अपने साथ जो दूसरा कप्तान होता है या सीनियर प्लेयर होता है उनको कॉन्फिडेंस में लेके काम करते हो, लॉबियां नहीं बनाते आप। ठीक है ना? इस तरह तो लॉबियां आपके अगेंस्ट बन जाएंगी। तो बाबर के साथ अगेंस्ट लॉबी बन गई। अब देखें, कैप्टनसी का सबको पता है कि बाबर कप्तान नहीं है अच्छा, उसको बहुत मौके मिले, उसने इंप्रूवमेंट नहीं की, उसकी कम्युनिकेशन तक इंप्रूव नहीं हुई। आप देखें उसका जो फीडबैक होता है प्री मैच, पोस्ट मैच और ड्यूरिंग द सीरीज, उसके फीडबैक कोई भी सब्जेक्टिव एनालिसिस, जी अच्छा हम तो अच्छा, हम वर्ल्ड कप जीतने हैं, हम अच्छा करेंगे, हम ये ऐसा नहीं होता यार। आप क्लियरली नंबर्स के साथ बताओ कि हम मैच हारे कैसे, हमने मैच जीतना कैसे है। ठीक है ना? आपको कम्युनिकेशन उसी वक्त आएगी जब आप कम्युनिकेशन सही करने की कोशिश करोगे। आपको कम्युनिकेशन का मतलब ही नहीं पता। बेसिकली आपके अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो हाउ कैन यू बी अ गुड लीडर? आपको भी पता है, अगर आप रिसर्च उठा के देख लें, इवन गूगल में सारी रिसर्च है कि अच्छा लीडरशिप होने के लिए क्या करना होता है। क्या ये लोग ये चीजें नहीं देखते? ये बस सोशल मीडिया पे लगे हुए होते हैं कि अपने हमारे बारे में क्या लिखा जा रहा है और हम उस जो हमारे अगेंस्ट लिख रहा है उसके अगेंस्ट क्या रिपोर्ट आ रही है। ये ड्रामा चल रहा है यार, मैं तो बेजार हो गया ट्विटर खोल के। यकीन करें साजिद भाई कि बस एक तरफ वो बाबर की फेवर में फोर्स लगी हुई होती है, दूसरे नीचे स्क्रॉल करो तो बाबर के अगेंस्ट लगी हुई होती है। कभी अहमद शहजाद की ये चल रही है, कभी यही ड्रामा चले जा रहा है। लोगों को पेड आपने कंपेन चला रहे हो। और अहमद सही कहता है कुछ तरीके से कि हाँ जी, स्टैट्स को दिखाया जाता है बना बड़ा चढ़ा के, और उनके बंदे बैठे हुए हैं वो ये चीजें कर रहे हैं कि तरह की पोस्टर लगी जा रही है। तो यार ये इन्होंने पाकिस्तान से खेलने के बजाय, पाकिस्तान की तरफ से खेलने के बजाय पाकिस्तान से खेलना शुरू कर दिया। भूल और गए अतीक कि यार भाई ये जो, जी, फाइनली द फ्यूचर रियली, अतीक भाई आपने कहा कि बाबर shouldn't be T20 captain. आप बताएं कि who should be the next T20 captain and what changes need making? Obviously, approach the way they play T20 cricket. देखें, सब में जो हमारे लिए एक वो है ना, सोचने का मकाम है कि हमने किसी कैप्टन को डेवलप नहीं किया। जब मिसबा था उस वक्त भी किसी कैप्टन को डेवलप नहीं किया, अचानक हटा, दूसरा कैप्टन आ गया, उसके बाद से चेंजिंग होती थी, कभी अजहर अली, कभी ये, कभी वो, कभी सरफराज। सरफराज एक था लीडर जिसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज नजर आती थी, जो लड़ता था टीम के लिए, लड़कों को लड़ाता था। मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान टीम को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए, मैनेजमेंट को, चेयरमैन को, कि कोई ऐसा कैप्टन लाए कि जो अगले 10 साल में तक की कैपेबिलिटी लगता रखता हो कि वो पाकिस्तान टीम में भी खेल सकता है और उसके अंदर लीडरशिप स्किल है। एक नाम मेरे जहन में आता है सऊद शकील का, क्योंकि उसने पाकिस्तान अंडर 19 वगैरह पे कैप्टनसी वगैरह की है। बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है, यंग लड़का है। मगर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का कल्चर हमारे मुल्क में नहीं है। हमारे मुल्क के जो सीनियर प्लेयर हैं वो जूनियर के अंडर खेलने से बिल्कुल ही नहीं एक्सेप्ट करते। सही है, जूनियर कोच आके सीनियर के ऊपर कोचिंग भी नहीं कर सकता। सीनियर प्लेयर, अगर अगर मैं हेड कोच बन जाता हूँ, मेरे अंडर कोई टेस्ट प्लेयर होगा, वो भी नहीं चल सकता। पाकिस्तान ने कल्चर ऐसा डेवलप किया हुआ है कि भाई यहाँ पे सिर्फ नाम किया है, जो दिखता है वो बिकता है। तो
या तो आप पूरी टीम चेंज कर दें और नया नया कप्तान लेकर आए साथ में, ताकि वो कप्तान अगले 5 साल 6 साल के लिए उस टीम को डेवलप करे। वरना इन लड़कों के 4-5 लड़कों को अगर आप टीम में रखेंगे और नया कप्तान लाएंगे तो वो ही जो है, मतलब कहने का मतलब ये है, कैंसर आपने टीम में रखा हुआ है, इलाज आप है ना किसी और चीज का करना है तो वो नहीं होगा। आपको उसके लिए एक अच्छे तरीके की डोजें लगानी पड़ेंगी और बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। देख, जब आप टीम बनाते हैं ना तो फिर हार जीत का नहीं सोचते, मगर आप टीम बनाने का सोचें। हमारी टीम तो हार जीत का वैसे ही नहीं सोची, इतने बड़े प्लेयरों को लेके हमने न्यूजीलैंड सीरीज में तजर्बे किए, आयरलैंड में तजर्बे किए, वहां हारते रहे हम, हर टीम हर छोटी टीमों से हमने हारने का रिकॉर्ड कायम किया है। तो भाई इससे बेहतर यही है कि पाकिस्तान ए टीम में जो करंट पाकिस्तान के टैलेंट है, जो 20-21 साल के लड़के हैं, 22 साल के लड़के हैं, आप उनको रखें। सऊ शकील को कप्तान बनाए टीम का, लेट्स सी हाउ हाउ कैन यू डेवलप। और एक अच्छा कोच रखें, अगर गैरी कैरिसन को रखना है आपने, आप जरूर रखें। गैरी कैरिसन को अथॉरिटी दें कि आके पाकिस्तान में आप फिर डेवलप करो, आप अपने कोच आइडेंटिफाई करो, अच्छा टीम का स्टाफ रखो, पीसीबी नहीं डिक्टेट करे उसको कि कौन स्टाफ उसके साथ रहता है। गैरी की होनी चाहिए ये इसमें से कि ना, मैं पिक करूंगा, मैं देखूंगा डोमेस्टिक क्रिकेट आके, मैं कोचेस के साथ काम करके देखूंगा कि बेस्ट कोच कौन है, वो मेरी टीम का हिस्सा होगा। तो देखें, बेस्ट विशेष पाकिस्तान के लिए हैं, हमेशा रहेंगी, मगर अब जो है ना चीजें बहुत ज्यादा हो गई हैं, अब बर्दाश्त से बाहर चीजें हो रही हैं। अब वसीम अकरम जैसा प्लेयर ने आके इतने हार्श इंटरव्यू दे दिए हैं तो लोगों के जो वो सब्र का पैमाना है ना वो खत्म हो चुका है। एक अब बहुत हो गया है। अब चेयरमैन को कुछ करना चाहिए, वरना वरना लोग, आपकी फैन फॉलोइंग खत्म हो जाएगी। अतीक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। Folks, there's the views of Atiq Zaman. Obviously very strong views there about the future of Pakistan's T20I team, Gary Kirsten's position, Babar Azam's position, and also who should be the next captain, etc. Atiq bhai, thank you very much. थैंक यू। Thank you.